ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਮੈਨੂੰ ਰਿਊਮੋਇਡ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀ, 4 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਬਟ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਖਾਧੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਟਾਂਡੇ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਿਲੀਫ ਸੀਗਾ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ। ਖਾਓ ਤੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਰਿਲੀਫ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਦ ਛੱਡਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਮੈਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦਾਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰ ਘੁੰਮ ਲਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਟ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਕਰਮਜੋਤ ਸੰਧੂ ਦੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ 2023 ਅਗਸਤ 'ਚ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਯੋਗਾ ਵਗੈਰਾ ਕਲਾਸਿਸ, ਨਾਲ ਡਾਇਟ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗਾ ਡੇਲੀ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਡਾਇਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ 2 ਛੋਟੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਅਰਥਰਾਈਟਿਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ, ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁਣ 2-4 ਮੰਥ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਡਾਇਟ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਐਂਡ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਨਿਕਲਣੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਡਾਇਟ ਕੁਛ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੇਨਸ ਉਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਨਾਲ ਡਾਇਟ ਪਲਾਨ, ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਔਰ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ, ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਅਰਥਰਾਈਟਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਮੈਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ, ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਛੱਡਦਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਛੱਡਦਾ, ਡਾਇਟ ਵੀ ਛੱਡਦਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ, 2.5-3 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਵੀ ਖਾਣ ਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਮੈਂ 4-4, 5-5 ਗੋਲੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬਟ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਛੱਡੀਆਂ, ਔਰ ਯੋਗਾ ਡਾਇਟ ਪਲਾਨ ਦੀਦੀ ਦੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਲੱਗੇ, ਬਟ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ, ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਆਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਸਾਰਾ ਬੋਡੀ ਆਪਣੇ ਯੋਗੇ ਨਾਲ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ, ਔਰ ਡਾਇਟ ਪਲਾਨ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੈਡੀਸਨ। ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਰਿਲੀਫ ਰਹੇਗਾ, ਮੈਡੀਸਨ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਇਹ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇਲਾਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਸਨ ਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਸਪੀਟਲ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਡਾਕਟਰ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਚਲੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਹੈ, 6 ਮੰਥ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਓ, 3 ਮੰਥ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫਿਰ 6 ਮੰਥ ਖਾਓ, ਕਿ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰਮਜੋਤ ਜਲੰਧਰ ਦੀਦੀ ਕੋਲ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਮੈਂ, ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਏਦਾਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਖਤਮ ਹੈ ਹੁਣ, ਬਸ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਪੇਨਸ ਕਿ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਂਗਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਟੇਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਨੋਰਮਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਮੈਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਖਾਧੀ ਬਟ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਦਰਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਇਲਾਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਫੋਰਨ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਡਾइट, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਗਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, 5 ਸਾਲ ਵੀ, ਜਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 4 ਇਅਰਸ ਦਾ, ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ 7 ਇਅਰਸ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਈ, ਸਕੂਲ ਗਈ ਨਾ, ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ, ਘਰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਦਵਾਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵੋਗੇ, ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਯੋਗਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਡਾਈਟ ਲਈਏ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਮੈਡੀਸਨਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਮਝ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ ਬਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਦੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੀਤਾ, 3 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ, ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ, ਯੋਗਾ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਲੀਵਰ, ਕਿਡਨੀ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ, ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਸਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਸਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਡੇਲੀ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਵਾਕਈ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ, ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਸ ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹ ਖਿੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਚੱਲੋ ਦੀਦੀ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਯੋਗਾ ਕਰੋ, ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਲਓ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਖਾਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਕਰਕੇ, ਜੀਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਓ। ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਖਾ ਲਓ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੀਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਖਾਏਂਗੀ, ਤੂੰ ਆਹੀ ਫੋਲੋ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇਰਾ ਡਾਈਟ ਚਾਰਟ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੌਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਲ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਅਰਥਰਾਈਟਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਬਟ ਇਹਦੇ ਇਲਾਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ,
ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਵੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜੀਣ, ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਡੀਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਉਨੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਧੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਮਾ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਮੰਮਾ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ ਗੁਣਵੀਰ? ਮੰਮਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ, ਮੰਮਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀ, ਹਾਏ ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਉੱਠਣਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਮਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਡੀਸਨ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦੀ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਸਭ ਸੈਡ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਦਾ, ਕਰਮਜੋਤ ਦੀਦੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਦੀ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਕਨਵਰ ਤੋਂ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਖਾਧੀ ਹੈ, 2.5 ਸਾਲ ਖਾਂਦੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿ ਚਲੋ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਰਵੇ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੇਟੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਈ ਸਾਈਡ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਵਾਲਾ ਸਭ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਛੱਡ ਕੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਿਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ ਦਰਦਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਪੇਨਸ ਬਹੁਤ ਕੱਢਣੀਆਂ, 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੀਦੀ ਕੋ ਉਹ ਲੋ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਾਣ ਆਪਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਰਾਜਮਾ ਆਪਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਰਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਛੱਡੋ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਛੱਡੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਡਾਈਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਆਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪੇਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਘਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹੀ ਕਰੇਂਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇਖਣਾ, ਫਿਊਚਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ, ਦੀਦੀ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾ ਲੋਗੇ, ਛੱਡੋਗੇ, ਭੱਜੋਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਛੱਡ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਨਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ 100 to 10% ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਸਹਿਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ 2 ਸਾਲ 2.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੇਨ ਸਹਿਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪੇਨਸ ਹੋਈਆਂ। ਮੇਰਾ weight 60 ਤੋਂ 30 ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਐਡਰੈਸ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। मैं पहले ही बोल देना था। मेरा वेट 60 kg था जब मैंने डॉक्टर के पास गई, और क्योंकि मैं तो दूसरी मेडिसिन ले रही थी और उनसे तो वेट बढ़ रहा था, 60 kg था। तो डॉक्टर ने बोला कि सब कुछ होगा। और मैंने जब मेडिसिन स्टार्ट की 1 ईयर के बाद मेरा वेट 30 kg हो गया, 30 kg था। तो इतना ज्यादा परेशान थी कि इतना वेट कम, डॉक्टर ने बोला तो बहुत कुछ होगा आपको,
बहुत कुछ होगा, वॉमिटिंग आएगी, बुखार होगा, कुछ भी हो सकता है बॉडी के साथ, वो अच्छे साइन है, उससे आप ठीक तो हो रहे हो। पीछे होके बैठो, थोड़ा जा पीछे होके बैठो। हाँ हाँ, ठीक है। तो फिर अभी मेरा वेट हो गया 50 kg है अभी वेट। तो तो मैं पहले आपका वेट 60 था, फिर धीरे 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 ट्रीटमेंट पर आपका वेट नीचे आया, 30 तक चला गया, अब वापस आप 50 के हो गए हो। हाँ, अब मैं वापस 60 की हो गई। और पहले आपको बहुत पेन्स होती थी, जब मुझे याद है जब आप मेरे पास आए थे, जब आपने हाँ मेरे को कॉल किया था, तब आपकी हालत बहुत ज्यादा बुरी थी। हाँ, और बहुत। फिर आप हमारी फोन पे बहुत बार बात हुई है, मैंने आपको ट्रीटमेंट पूरा जब मेरे समझाया। फ्रेंड्स जब मेरे फ्रेंड्स होती मैं आपको फोन करती थी, मैंने कुछ नहीं करना, मैंने सब कुछ छोड़ देना, मैंने एलोपैथी खानी है बस। तो घर वालों ने मुझे लॉ नहीं किया एलोपैथी खाने के लिए, कि नहीं हम आपको एलोपैथी नहीं देंगे। धीरे धीरे सब कुछ, इतनी पेन थी कि मुझे था कि अभी तो कुछ भी नहीं असर करेगा मेरी बॉडी पर। जब ऐसे आप पहले जब आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था तिंदर जी, उस टाइम घर दे काम नहीं सी कर सकते, घर के काम नहीं कर पा कुछ रहे नहीं थे? कर दे काम। तो एक साइड मैं तो चल भी नहीं पाती थी, एक पैर भी ऐसे बेड से, अगर ऐसे हो तो ऐसे ही रहती, अगर कोई मुझे उतार दे तो मैं फिर चल, अगर मैं वॉशरूम जाना होता तो मैं किसी की वेट करती थी, कोई आए मुझे वॉशरूम लेके जाए, और मुझे वॉशरूम में बिठा, और इतनी बीमार थी कि मेरे हस्बैंड 1 ईयर कर ही रहे मुझे वॉशरूम ले जाने के लिए, मेरे कपड़े चेंज करने लिए, वो घर पे ही थे, कि मैं इतना ज्यादा मेरा था काम, तो एक मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी, बस वहां से उठी वहां लिटा दिया, वहां से लेटी वहां पर चली गई, ऐसे थी मैं। और मेरे बच्चे कहाँ हैं मुझे नहीं मालूम था, मैंने बच्चों से तो बोलना ही बंद कर दिया, पता नहीं अब क्या होना है, ऐसी हाल थी। बच्चे आते थे मम्मा बहन कि मैं हाथ ऐसे थे कि मैं ऐसे उसको प्यार भी नहीं कर सकती थी अपने बच्चों को। अभी मैं ठीक हुई हूँ और बच्चे भी मेरे खुश है कि हमारी मम्मा चल रही है। जब मैं पहली बार चली एकदम पेन्स तो रिलीफ हुई, तो बच्चे खुश हुए कि मम्मा आप चल रहे हो, मम्मा आप खाना बना रहे हो, तो उनकी खुशी अलग थी। बट और पेशेंस आपको ना, पेशेंस रखी है आपने, पेशेंस साल रखी। बहुत पेशेंस रखी, मन तो पेशेंस रखनी पड़ती है, पेशेंस इसलिए रखनी पड़ती है कि हम जाएंगे कहाँ। हाँ बिल्कुल। अगर हम ये सोचे कि हम जा ही नहीं कहीं सकते, तो फिर पेशेंस आ जाती है कि हमें करना ही पड़ेगा। अगर कुछ ऐसा हो कोई बात नहीं, चलो ऐसे करा लेते हैं, हम ठीक हो जाएंगे, वो जा सकता है, हम तो कहीं जा भी नहीं सकते। सही में। इसमें सिर्फ डॉक्टर देते हैं पेन किलर, बस। या डॉक्टर ने स्टीरॉइड देते हैं, या फिर स्टीरॉइड डॉक्टर देते हैं। ने डॉक्टर ने खुद बोला था मुझे, जब मैं दिल्ली गई थी डॉक्टर के पास, वो रेमोटोलॉजी का स्पेशलिस्ट था, दिल्ली का डॉक्टर था, और उसने मुझे बोला, और मेरे हस्बैंड ने पूछा उनसे कि कब तक मेडिसिन चलेगी इनकी। उन्होंने कहा कि लाइफ टाइम 6 मंथ्स खा ले, 3 मंथ्स छोड़ दे, फिर 6 मंथ्स खा ले। फिर उन्होंने मुझे एक बात और बोली कि आप 3 मंथ्स बाद अपना लीवर टेस्ट करवाते रहे। तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कि हम लीवर टेस्ट क्यों करवाएंगे, कहते कि इसकी मेडिसिन इतनी हार्ड होती है रेमो कि इसका असर सीधा लीवर पर जाता। उसी टाइम से मेरे हस्बैंड ने वो दवाई वहां ही फेंकी, वो सोचने लगे कि इनका क्या जाएगा, अगर लीवर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, डॉक्टर का क्या, उन्होंने तो मेडिसिन देनी, उन्होंने तो कह दिया कि 3 मंथ बाद अपना लीवर टेस्ट करवा लो, क्योंकि इसकी मेडिसिन पूरा लीवर पर ही असर करती है। रेमोआइटिस जो मेडिसिन है वो सीधा लीवर किडनी पर ही असर करती है, क्योंकि वो वीक हो जाती है इस बीमारी की वजह से। तो अतिंदर जी, हमारे पास जब आपने पूरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, डाइट भी ली, एक्सरसाइजेस भी की, मेडिसिन भी ली, और पूरी चीजें जैसे मैं बताती थी आप वैसे फॉलो करते थे, लेकिन इन 3 सालों में आपने कोई एलोपैथी नहीं खाई साथ में? नहीं, और जब पेन बहुत बढ़ती थी फिर क्या करते थे? क्योंकि मैं तो कभी कभी पेन किलर लेती थी, बहुत कभी रेयर।
वो रियल थी। कभी जब बच्चे जिद करते थे मम्मा आप ही जाओ, आप ही हो, आप ही, फिर मुझे पेन किलर लेनी पड़ती थी। हम्म। तो फिर मुझे कभी कभी अदरवाइज आप जब पेन्स हाँ जी अदर हाँ, क्योंकि क्योंकि हमारे पास मेरे पास और भी कि जैसे ये क्लासेस हैं, क्लासेस में कुछ लोग लाइव हैं और बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग से देखते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने एक्सपीरियंस से उनको ये दो बातों पे जरूर गाइड करें। एक, सबका वेट नीचे आता है तो सब घबरा जाते हैं और ये सब सोचने लगते हैं कि वेट कम हो गया है तो अब पता नहीं क्या नुकसान हो जाएगा। और दूसरा, जब सभी को लूज मोशंस बहुत ज़्यादा लगते हैं, बहुत ज़्यादा फीवर आता है, तब घबराते हैं। और तीसरा, जब पेन्स बढ़ जाती हैं तब घबराते हैं। ये तीन बातों पे आर्थराइटिस पेशेंट घबराता है। आर्थराइटिस में तो है ही तीन बातें। पेन तो होगी आपको, पेन्स तो इतनी होगी कि आप चाहोगे मैं मर ही जाऊं, मैं कुछ खा लूं, मैं अपनी खत्म कर लूं लाइफ। ऐसी पेन्स होती है। क्योंकि अभी तो मुझे, मैं अपने हस्बैंड से कभी कई बार बात करती हूँ कि पेन्स कैसी थी, वो कह रहे हैं कि आपकी खत्म होगी ना इसलिए आपको याद नहीं है कि पेन्स कैसी। मैं कई बार सोचती हूँ कि मेरे पेन्स होती थी, मुझे अभी कुछ भी याद नहीं। इतनी पेन्स थी कि अभी मुझे इतना रिलीफ है। बहुत पेन्स थी, मेरे यहाँ पेन्स, मेरे यहाँ पेन्स, मेरे यहाँ पेन्स, मेरे नेक में पेन्स, मेरे घुटने इतने इतने थे। और मैं दीदी को जब जाती थी ऐसे अपने हैंड करती थी कि हाँ ये देखो क्या हो गया, ऐसे हो रहा है। क्योंकि मैं बाहर पूरा 2 साल में 2 years में बाहर नहीं निकली, मैं किसी को मिलती भी नहीं थी। अगर कोई आता था मैं अपने हैंड ऐसे ही लेती कि मुझे कोई देखे ना कि मैं कैसे। इसमें पेन्स भी बहुत बहुत पेन्स होती है, मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी पेन्स, बेटा बेटा नहीं जाओ, इतनी पेन्स थी कि उनको भी होती होगी। बट पेन्स पेन्स होगी तो हम ठीक होंगे, वेट लूज होगा तो हम ठीक होंगे, अगर मैं बुखार होगा, लूज मोशन होगा तो हम ठीक होंगे। मुझे लूज मोशन जब मैं इतने होते थे, वॉमिटिंग आती थी। एक बार तो मुझे वॉमिट में इतना ब्लड आया तो मैंने डॉक्टर को दम से फोन किया कि मुझे कुछ हो रहा है कुछ। मैंने बाहर इतने टेस्ट करवा लिए, वो कह रहे कि कुछ भी नहीं है आपको, तो आप तो बिल्कुल ठीक हो। तो सब कुछ मेडिसिन ने मेरा मुझे ठीक किया। वेट बिल्कुल कम हो, डॉक्टर ने मुझे फर्स्ट टाइम ही बोला था वेट भी गेन सब कुछ होगा आप, लेकिन मेरी दवाई छोड़ के भागना नहीं है। आपके जो हैंड है जहां तक करोगे अपना घुटना, या आप व्हील चेयर पर आ जाओगे। सब कुछ डॉक्टर ने हस्बैंड से क्लियर किया था, इसलिए उन्होंने मुझे दवाई नहीं। अगर ये सब कुछ होगा तो फिर आप ठीक होगे, अगर नहीं होगा तो फिर नहीं हो सकते। मेरा वेट बहुत गेन हुआ था, अभी मैं थोड़ा ठीक हूँ। मैं तो ऐसी थी, मेरे को मैंने कोई उस टाइम फोटो क्लिक की तो आप कह ही नहीं सकते कि वो मैं थी। मेरे बच्चे भी देख के अभी अभी तो देख रहे कि मम्मा ठीक है, सभी देख। अभी मैं अपनी मायके में जाती तो कहते हैं कि हाँ अभी तो ठीक लगती है, नहीं तो मैं वहां भी जाना सब था, जाना छोड़ दिया कि मैं नहीं कहीं भी जाऊंगी, पता नहीं मेरी लाइफ खत्म ही हो चुकी है। लेकिन अब ऐसे लगता है कि कुछ था ही नहीं, मुझे तो याद ही नहीं है कि मेरे पेरेंट्स थी। तो अभी तो मैं आपको कोविड कोविड के बाद शुरू हुआ था? कोविड के बाद, कोविड के बाद कोविड के इंजेक्शंस लगवाए थे, वैक्सीनेशन भी ली थी? इंजेक्शन नहीं मैंने लगवाए थे कोविड के। तो 2020 में शुरू हुआ है आपको आर्थराइटिस। मेरे पास आप पहली बार आपने जब कॉल किया था और हमसे पूरा ट्रीटमेंट स्टार्ट कब किया है? 2021 में कि 21 में कि 22 में? 22 में किया था। 22 में किया था, ठीक है। और आप 2022 में ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और 2025 तक आप आज बिल्कुल ठीक हैं, सारे घर के काम कर लेते हो, सब कुछ ओके है। मेडिसिन भी ले रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ अभी भी। और अब डाइट में जो रिस्ट्रिक्शंस थे, डाइट में आपको जो मैंने चेंजेस बताई थी, वो अभी भी फॉलो कर रहे हो या अब सब कुछ पच जाता है? अभी नहीं, अभी तक तो मैं फॉलो कर रही हूँ। अभी तक फॉलो कर रहे हो, ठीक है ठीक है। अभी नहीं मैं छोड़ सकती, अभी तो थोड़ा टाइम और 1-2 years और मैं चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ।
जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे और 6 महीने साल एक्स्ट्रा ही ट्रीटमेंट को फॉलो करके फिर छोड़ना। जब आपको लगे ना कि अब मैं, अंदर से आवाज आ जाएगी, अंदर से आपको एक ऐसी सेटिस्फेक्शन आएगी जब आपका मन आपसे कहेगा अब तो जो मर्जी खा, अब दवाई की भी जरूरत नहीं है। वो टाइम जब आएगा तब जाके आप अपने सारे परहेज छोड़ना। तब तक आप सब चीजों को फॉलो करो, एक्सरसाइज भी करो, योग भी करो, प्राणायाम भी करो, डाइट भी फॉलो करो, मेडिसिन भी खाओ। अभी तक तो मैं सब कुछ फॉलो कर रही हूँ, मुझे ठीक किया है तो मैं करूंगी, बिल्कुल ठीक होना चाहती हूँ मैं। 5 to 6 years तो लगेंगे, 7 years। मैं तो कुछ नहीं खाऊंगी, डाइट प्लान लूंगी तब तक, और सब कुछ लूंगी कि मैं अंदर से कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू वतन जी। हाँ, ये मत छोड़िए, घाटिए मत, इसलिए मैं लाइव हुई हूँ आज संडे, क्योंकि मुझे मालूम है इसका दर्द कैसा है, लेकिन झेलना पड़ेगा इसे, हमें सहन करना पड़ेगा दर्द को। कहीं भी बैठे हो अपनी जिंदगी, आप ये सोचो कि हम कहीं भी नहीं जा सकते, यही एक रास्ता है जो हम अपनाएंगे, हम ठीक हो। क्योंकि चंडीगढ़ तो भी, मोहाली तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं अतिंदर जी जो वीडियो सुन के मेरे पास आते हैं। लेकिन आपकी बात 100% राइट है। जैसे ही पेन्स बढ़ते हैं ना, ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, सब छोड़ते हैं। कहते हैं हमने दवाई भी नहीं खानी, हमने एक्सरसाइज भी नहीं करनी, हमने योग प्राणायाम भी नहीं करना, हमने डाइट भी नहीं फॉलो करनी, कुछ नहीं हो रहा जी, दर्द बढ़ रही है। और दर्द बढ़ते ही घबरा जाते हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, जब दर्द पड़ती है तो हम कहते हैं कि नहीं वो ही मेडिसिन ठीक थी, खाओ आराम से रहो। और वो जो अंदर करती है ना, वो बाहर तो नहीं दिखाती, जो अंदर कारा करती है वो मेडिसिन, वो हमें उसके रिजल्ट हमें 2 3 4 साल बाद पता चलता है कि हमने बहुत गलत किया। फिर उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद तो योगा प्राणायाम डाइट भी नहीं कुछ करेगी। फिर लोग कहते हैं कि नहीं डाइट ले लेते हैं अब तो हम, फिर कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं, आपके घर वालों को भी बहुत बहुत दिल से थैंक्स है, क्योंकि मैं तो देखती हूँ लोगों को घर वाले नहीं जीने देते। मतलब पेशेंट समझ जाता है कई बारी कि हाँ चलो ठीक है हमें ऐसा करना है, लेकिन उनके हस्बैंड, उनके वाइफ या उनके पेरेंट्स या उनके बच्चे वही नहीं फॉलो करने देते ट्रीटमेंट। वो कहते हैं छोड़ दो, तुम पागल हो जो ये सब कर रहे हो। छोड़ दो, क्या कर रही हो, आराम से मेडिसिन खाओ। वो तो कहते हैं चलती फिरती रहे बस, हमें ऐसे ना दिखेगी बैठ के। हाँ बिल्कुल। और आपके मदर इन लॉ, आपके हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया है ना। क्या, लेकिन फैमिली में फर्क होता है। पढ़े एजुकेटेड में ये पता हो कि मेडिसिन का नुकसान है। हाँ सही में। जो जिनको नहीं पता मेडिसिन का क्या नुकसान है, वो बोलते कोई बात नहीं, इससे छोड़ो हम मेडिसिन। उन्हें पता है कि पेन किलर्स जो एंटीबायोटिक है उसका कितना हमारे, हम तो बच्चों को भी बुखार, वो तो बच्चों को भी इसकी, हमारी जो मदर इन लॉ है, बच्चों को बुखार होता है कुछ भी होता है, वो दूध पानी में हल्दी, शहद, अजवाइन का पानी ऐसे करके बच्चों को एक एक चम्मच देते हैं कि मेडिसिन से दूर रहो, बच्चों को भी दूर रखो। बच्चों का भी नाजुक बॉडी है, सब कुछ अभी तो बन रहा है, हम मेडिसिन दे दे के उसको नीचे कर रहे हैं कि नहीं आप मत ग्रो करो। इनको देसी इलाज करते हैं, हम कुछ भी देते हैं तो ऐसे हल्दी वगैरह पानी डाल दिया, वो दे दिया, अजवाइन दे दिया, पराठे में हींग लगा दी कि बच्चे ठीक है। तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं अपने बच्चों को कोई मेडिसिन ना दूं। पहले मैंने तो बहुत मेडिसिन खा ली है, मैं भी ऐसे ही करती थी, चलो कुछ नहीं होता इनों में, पेन किलर खाओ, आराम से सो, अपनी लाइफ जियो। बट नहीं, लाइफ उसमें नहीं, लाइफ तो अब जी असली ठीक रहे हो ना, होना। अब कैसा लग रहा है, अब ठीक होने के बाद कैसा लग रहा है? तो मेरी बेटी कहती है मम्मा मेरे साथ डांस करो, और मैं इसके साथ रोज डेली डांस करती हूँ। इसके स्कूल में फंक्शन होता है तो ये फर्स्ट प्राइज मेरे साथ लेके आती है। और फर्स्ट इनके टीचर्स भी, प्रिंसिपल बैठ यही बोलते हैं कि ये इनकी मदर है, जो किसी टाइम इन्हें पता भी नहीं था कि मेरे बच्चे कौन से स्कूल जा रहे। और तब जो ट्यूशन पे थे, अभी दोनों बच्चे मेरी क्लास में हर एक्टिविटी, हर प्राइज लेके आ रहे हैं दोनों बच्चे। खुद पढ़ा रही हूँ, खुद स्टडी कर रही हूँ। हाँ बेटा, तो इतना मैं अभी सारा कुछ आप कर रही हूँ। नहीं तो बच्चों को टीचर्स ऐसे थे कि बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, क्योंकि मैं बीमार थी तो बच्चे ट्यूशन पर जाते थे, कोई इतना नहीं ध्यान देता था। अभी स्कूल में फंक्शन हुआ था, उसमें डांस, और मुझे भी मेरे फर्स्ट प्राइज मिला मेरी बेटी को।
कि आपकी मम्मा तो आप कह वहाँ तब कह रहे कि मेरी मम्मा बहुत बीमार है, स्कूल में रो मेरी मम्मा तो चल नहीं पाती, मेरी मम्मा ऐसे नहीं कर पाती। तो मेरे बेटा भी फर्स्ट प्राइज लेके आ रहा है और एक्टिविटी में, और मैं सब कुछ कर रही हूँ उनका, हर एक चीज बना रही हूँ उनको, डांस वगैरह जिस क्लास में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि मैं ठीक हूँ तो मेरे बच्चे सब कुछ करें। तो मैंने सिर्फ योगा करो, एक्सरसाइज करो, डाइट प्लान लो, डॉक्टर की दुआ लो, बस कहीं और ना चाहो अगर जीना है तो। अगर अभी रिलीफ चाहते हो तो फिर थोड़ा टाइम ही है, अगर चाहते हो कि अभी, हम डॉक्टर ने पहले ही बोला था कि मेरी दवाई मेडिसिन कोई नहीं लेता, सब जब जैसे दर्दें बढ़ती हैं, पेन्स बढ़ती हैं, सब भाग जाते हैं कि छड्डो हमने क्या खानी है, यहाँ पर तो कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि मैंने खाई है, मेरा एक्सपीरियंस हुआ, इसलिए मैं लाइव हुई हूँ कि आप मत भागिए, मत छोड़िए। जब आप ये सोचिए, आप जब भी छोड़ो तो आप मेरे बारे में जरूर सोचना कि उन्होंने सब सब डॉक्टर, क्योंकि मैंने इतने महंगे तो महंगा डॉक्टर नहीं छोड़ा, जो गूगल पर सर्च करते थे, जो सबसे बेस्ट डॉक्टर, उसके पास हम पहुंच जाते थे कि नहीं मैं वहां से ठीक हो जाऊं, कि नहीं नहीं, पर कुछ नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है, कहीं भी आप चले जाओ कुछ नहीं होगा आपको। आप करते रहो, 2 3 4 5 साल 6 साल, कितना भी टाइम लग सकता है। बस पेशेंस रखिए कि हमने जीना, ये सोचकर आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है जी, आप थैंक यू सो मच रतिंदर जी, और आपकी पेशेंस के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। बेशक हम लोग गाइड करते हैं, बात करते हैं, आपको समझाते हैं, लेकिन सहन तो आपने किया है ना, मतलब फेस तो आपने किया है। बिल्कुल, वो पेशेंस ही सब कुछ है। मैंने सोचा था कि मैंने छोड़ दी थी मेडिसिन, मैं लेने नहीं जा रही थी, मैं कोई योगा नहीं कर रही थी, कि मैं कह रही थी कि मेरे पेन्स है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला मैं दूसरी मेडिसिन कोई नहीं लेके दूंगा, ऐसे ही बैठी रही क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी लाइफ खत्म हो, कि तेरे को कुछ हो जाए, मेरे बच्चों का फ्यूचर खराब हो। घर वालों ने सोचा हम कुछ नहीं देंगे, आपको यही फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बहुत वीडियोस देखी उन्होंने कि नहीं वो सबसे अच्छे हैं, वहां से तू ठीक होगी। फिर ही हम आपके पास गए थे, और मैंने पेशेंस रखा, मैंने आपको बहुत फोन किए थे मैं छोड़ दूंगी, मेरे बहुत पेन्स हो रही हैं, फिर मैं मेडिसिन खाने लगती। फिर जब आप कहते थे नहीं नहीं आप खाओ एकदम, फिर मैं मेडिसिन फिर खा लेती थी कि हाँ फिर मैं ठीक, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी सब कुछ ठीक है। मेरी लाइफ भगवान की वजह से बहुत अच्छी चल रही है, और मैं गॉड को कहती हूँ कि सब ठीक हो जाए, मुझे ठीक है, सबको ठीक करो। बट भगवान कहते हैं कि कुछ करना पड़ता है, इसलिए ऐसे नहीं कि हम गोली खाए, हमें सहन भी करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं तो। हम ये नहीं कि कर लिया और कह दिया ये कुछ नहीं हो रहा, हम नहीं करेंगे, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। जब हमारे नेगेटिव सोचेंगे तो हम कभी नहीं ठीक होंगे। मैं सभी से हमेशा ये कहती हूँ कि लाइफ टाइम सहन करने से अच्छा है 3 4 साल सहन कर लो। मैंने किया है तो मुझे लाइफ टाइम भी नहीं, हम जितनी मेडिसिन ले रहे हैं ना, हमारा लीवर किडनी 6 7 1 ईयर्स में, वो कहते हैं कि अपनी कराओ, अपना टेस्ट करवाओ लीवर का। क्यों कहते हैं लीवर का टेस्ट कराओ? क्योंकि ये मेडिसिन सीधा लीवर की, क्योंकि रेमो अर्थराइटिस है, वो ऐसा है कि वो हमारी किडनी और लीवर पर ही असर करता है। जब हम बुक्स पढ़ते हैं, गूगल सर्च करते हैं, वहां पर देखिए कि जो रेमो अर्थराइटिस है उसका असर हमारी किडनी और लीवर पर ही असर होता है। जब हम मेडिसिन एलोपैथी रहती है तो वो ज्यादा असर करता है, क्योंकि उनकी वो कमजोर हो चुके होते हैं इस बीमारी से। क्योंकि जब हम दूसरी मेडिसिन खाते हैं तो उन्हें कुछ लीवर और किडनी कुछ खाने को, बॉडीज को, वो हमारी बॉडी खींचता है। जितनी बुक्स पढ़ोगे आपको यही पता लगेगा कि नहीं हमने इसमें योगा ही करना है, हमने एक्सरसाइज ही करनी है, हमने होम्योपैथी मेडिसिन लेके 3 चीजों से ट्रीटमेंट होगा। कल होम्योपैथी से नहीं होगा कि चलो 2 4 गोलियां खा लेंगे कोई बात।
सब कुछ करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक होगे, इसलिए मैं आज लाइव हुई, नहीं तो मैं तो लाइव नहीं होती हूँ। मैंने सोचा था कि नहीं मैंने नहीं होना, जब कहा कि बहुत दुनिया परेशान है, सब दवाई छोड़ देती है, तो मैंने सोचा कि नहीं चलो आज संडे को होगी, मैं संडे को फ्री होती हूँ, नहीं तो मैं सुबह तो बच्चे जाते हैं, इसलिए मैं आज लाइव वेट होगी 1 मिनट वेट। तो अभी तो मेरे बच्चे भी जब मैं बीमार थी तो ये बहुत अच्छे थे, आराम से रहते थे, काम करते थे। अब मैं ठीक हो गई हूँ तो ये कुछ भी नहीं कर मम्मा आप ठीक हो, हम कुछ भी कर सकते हैं, आप ठीक हो, हम कुछ भी कर सकते हैं। चलो आपका बहुत बहुत थैंक्स टू दीदी। सब फॉलो कीजिए, जब भी आपको लगे कि नहीं मैं छोड़ दूंगा, मेरे बारे में सोच लेना कि मैं हमने उनसे बात की थी, इसलिए मैं आपके लिए ही हुई हूँ लाइव। आप मत छोड़ना, 4 5 6 7 8 कितने भी साल लग सकते हैं कि बहुत पुराना होता है ये। मुझे तो यंग में एज में था, फिर भी मैंने बहुत दर्द सही, बहुत ज्यादा पेन सही। मेरी कोई मैं ऐसे ही रहती थी, ऐसे ही, क्योंकि ऐसे नहीं होते थे लोग, और मैं ऐसे ही रहना, ऐसे मुझे खाना खिलाना, इनके पापा ने खाना खिलाना, और बस ऐसे ही होता था। अभी मैं जो मर्जी कुछ भी कर सकती हूँ, तो बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू दीदी, आप सब फॉलो कीजिए, डॉक्टर को भी, दीदी को भी। अतिंदर जी हस्बैंड मर्चेंट नेवी में है? हाँ जी मत नहीं, तो वो मतलब ड्यूटी पे कहीं बाहर होते हैं या पंजाब में ही है? मैम वो फॉरेन होते हैं, अभी वो एग्जाम दे रहे हैं सेकंड इंजीनियर का, उनके एग्जाम चल रहे हैं अभी, एक लास्ट रह गया 28 तारीख को है उनका एग्जाम। कौन सी कंट्री में है फॉरेन में? चीफ इंजीनियर है वो, अभी एक एग्जाम देना है उन्होंने, तो वो फॉरेन में, इंडिया में नहीं उनका होता, सिर्फ फॉरेन में ही होता है। फॉरेन में कहाँ, कौन से कंट्री में? किसी कंट्री में भी हो सकता है। अच्छा अच्छा, अलग अलग कंट्रीज में जाते रहते। उन्होंने बोला था कि आप कहीं भी स्टे ले सकते हो, लेकिन हमने सोचा कि नहीं हम यहाँ ही रहेंगे, वहां पर तो कुछ नहीं है, हमें ठीक ही मैं यहाँ आई हूँ, तो वो कहती हम तो अभी तो कहीं भी नहीं जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, हम योगा कर्म दीदी के पास जा सकते हैं। मैं तो बच्चों को भी कहती हूँ एक्सरसाइज करो, और मेरी बेटी योगा करती है। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि क्लास में जितने भी लोग हैं, और एटलीस्ट वो लोग जो समझ नहीं पाते हैं, वो आपके लाइव एक्सपीरियंस से ये चीज़ों को समझ पाएंगे, देख पाएंगे। क्योंकि 3 फैक्टर जब होते हैं ना, वेट घटना, पेन बढ़ना, और जब तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, और लूज मोशंस और फीवर्स और ये सब कुछ होता है, ये सब लोग हमारा ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं। तो फिर फायदा ही नहीं मिलता, और हमें ये लगता है कि ये समझ क्यों नहीं रहे, क्यों नहीं समझते कि सारी उम्र पड़ी है ना? सारी उम्र दर्दें सहन करने और तकलीफ सहन करने से अच्छा है कि थोड़ी देर सहन कर लो, फिर सारी उम्र जन्नत है, बाद में स्वर्ग जैसी जिंदगी है, बाद में खुशियां ही खुशियां हैं। माय गॉड, भगवान ने स्वर्ग ही की है। मेरे घर में अभी खुशी है, नहीं तो मैं बेड पे थी, सब ऐसे ही बैठे रहते थे कि पता नहीं अब क्या होगा। तो अभी तो मैं चलो सब कुछ ठीक है। बल्कि आप बिल्कुल मत छोड़ना, जब भी छोड़ने का मन करे तो मुझे याद कर लेना। क्योंकि मैंने इतनी कम उम्र, मैंने कभी पेन्स नहीं ली थी, मुझे पता ही नहीं था पेन्स क्या होती है। बट मुझे जब एज क्या है अभी, क्या एज है? एज मेरी 28 है। मैं अभी 28 हो, और जब स्टार्ट किया था तब आप 24 साल के थे? ओह, तो बहुत छोटे हो। हाँ, सब रोते थे, मेरे भाई ब्रदर, मेरे मम्मी पापा वो रोते थे कि हमारी बेटी को क्या हो गया, ये हो गया, लेकिन सबने मुझे आपके लिए सपोर्ट किया, किसी ने मुझे ये नहीं सपोर्ट किया आप दूसरी मेडिसिन खाओ। मैं जब दूसरी मेडिसिन लेने जाती तो सब कहते मरना मर जा, बच्चे तेरे ही रोएंगे। तो फिर मैं सोचती कि नहीं, देख आपके बच्चे तेरे बिना नहीं रह सकते, तू एक दिन छोड़ के जा इसे, कैसे रहते हैं। अगर तूने जीना है तो ये करना है, अगर तू सोचती है कि मैंने नहीं जीना, इनका फ्यूचर खराब करना है, तो दूसरी मेडिसिन। तो मैं इनका कहना मानती, तो मैं अपने मम्मी वहां फोन करती थी कि मैं क्या करूं, कहते कि वो ही कर जो जीने के लिए है, बच्चों के लिए जी, अपने बच्चों के लिए, हमारे लिए जी कि हमारी बेटी है। हम कहते हैं कि ना देखा हमने नहीं छोड़ने दिया, तो मैं क्या हाँ मैं सबका थैंक्स कहती हूँ।
पेन्स मुझे होती थी, सब मुझे कहते थे कोई बात नहीं, कोई बात। मैं कहा हाँ, ये पेन्स हो रही है, मुझे कुछ दे दो खाने के लिए, मैं मर जाऊँ, मुझे कोई दवाई दे दो। मैं ऐसे ही करती थी बैठ के। और मेरे बच्चे कहते मम्मा नहीं आप ठीक हो जाओगे, गोलियाँ ना खाओ, पापा ने कहा गोलियाँ नहीं खानियाँ। मैं कहा ठीक है, मैं कहा नहीं मुझे कुछ, मैं मर जाऊँगी, मुझे कुछ दे दो। गुणवीर मैं नहीं, मैं बच्चों को मैं नहीं जीना चाहती, मुझे कोई नहीं मिलना किसी से। मैं कोई आता तो मैं कहती मैं नहीं मिलना, मैं आराम से मुँह दूसरी साइड कर लेती थी। फिर किसी से मैं कहती नहीं, मैं तो ठीक नहीं, मैं क्यों किसी से बात करूँ, ऐसे था। अब सब आते हैं कि अभी वो मुझे कहते हैं कि क्या करती तू यहाँ पर? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है कि मेरी इतनी पेन्स थी। मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ कि मैं थैंक बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड अतिंद्र जी, स्टे ब्लेस्ड। एंड मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कभी कोई आर्थराइटिस वाला व्यक्ति मिले, उसे अपने एक्सपीरियंस से जिंदा करना। सबको बताती हूँ, बट मैं सबको यही कहती हूँ कि नहीं आप नहीं कर पाओगे। वो कहते क्यों? मैं कहा नहीं, जब पेन्स होती हैं तो सब भाग जाते हैं। मैंने डॉक्टर के पहले, क्योंकि मैं आपके पास भेजती हूँ उसी को कि अगर करना है तो फिर ही जाना, ये मत कि आपको साल बाद मैं ठीक हो जाऊँ, वो बेकार है। आगे अगर आपने जीना है तो आपकी लाइफ है, अगर ठीक होना है तो आपको पेन सहन करनी पड़ेगी। और मैंने तो की है ना, मुझे मालूम है। अब कोई भी पूछता है कि मैं जाऊंगा डॉक्टर के पास, मैं कहा ये डॉक्टर ऐसा नहीं है कि कहेगा गोली खा लो आराम से लाइफ जियो। मैं कहा जी डॉक्टर कष्ट देता है, अगर आपने ठीक होना है तो आपको कष्ट लेना पड़ेगा। डॉक्टर खुद कहता है कष्ट लेना पड़ेगा अगर जब मेरे से ठीक होना है तो उन्होंने बोला ऐसे होगा, पहली बार में आपको ऐसे भी हो सकता है, आप व्हील चेयर पर चले जाओ, आप ऐसे हो जाओगे। तो अभी तो चलो ठीक है बिल्कुल। चलो ठीक है जी, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। स्टे ब्लेस्ड अतिंदर जी, एंड थैंक यू लाइव आने के लिए, थैंक यू अपना एक्सपीरियंस और अपना टाइम देने के लिए, एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।